Hi guys, good morning. So now first of all, what are we going to complete this week? We are going to complete the entire differentiation. Okay, that includes the first principle rule also. So we will be completing that. Also guys, we'll be starting then the application of derivatives, which is the most important chapter for your entire boards. So I'm purposely trying to complete first of all those chapters which have got the highest weightage in this week in this would be I think in maths, then coming back onto the part of physics. So we would be completing electrostatics, the entire part, the electric field, and also we would be able to complete the entire potential and capacitance. So इस week के अंदर पूरा का पूरा potential, capacitance, electric field means chapter number 1 and chapter number 2 according to the NCERT book and according to the state book, that is the इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, गॉसेस थ्योरम, TNEI, कैपेसिटेंस, वो सारा का सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, which is I think one of the chapter. As far as coming to the part of chemistry, we would be completing first of all solid state in this week, and also we would be partially able to not actually complete, but I think we would be able to start the topic of solutions. Okay. I won't say solutions will be started because solution start होकर के आधा almost तक खत्म हो चुका होगा, because we have got around 6 days. Okay, and then on the next Sunday we have got as usual the test. So fine, yesterday I could see only 10 or 11 people giving the test. Guys, please understand, this test is not actually a test, but this test is to make sure that whatever you have understood, you are writing that on the piece of paper. So I could see some of the fellow members, like one of the candidates. So I will not take the name, otherwise sir उसने दिया था, हमने भी तो दिया था. But I am just seeing that few of the candidates are not giving, so I would request them to give the test. This actually maintains the rhythm. Now coming back onto what are we going to do today. Today, as you can see, the topic written is over there as of maths or mathematics, and it is known as differentiation. So we are still on to the part of differentiation. These are the formulas. So I'll make a slide right now. If you can take a screenshot of the current screen right now, it will be very, very helpful for you. यदि आपने इसको लर्न कर लिया है तो नथिंग लाइक इट. यदि आप इसको लर्न कर सकते हो आज में, वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक है फॉर द पार्ट ऑफ कैलकुलस. यदि आपको ये स्क्रीन अच्छे ढंग से आ गया और आज जो होने वाला है वो आपको अच्छे ढंग से आ गया, तो आई डू नॉट थिंक that technically there is going to be any problem as far as differentiation, application of derivative, differential equation, integration and the application of integration is concerned. अब बोलोगे इतने से बोर्ड में ऐसा क्या लिखा है? That you will come to know as the time proceeds. But please do learn these formulas, or else guys take a snapshot, but either way you have to learn these formulas. So these are the formulas. I'm just going to read it out for you. D by dx of cot inverse x is equals to minus 1 upon 1 plus x square. D by dx of sec inverse x is equals to 1 upon x under root of x square minus 1. D by dx of cosec inverse x is equals to minus 1 upon x under root of x square minus 1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. इसके बाद में डिफरेंशिएशन में और कोई फॉर्मूलेज नहीं बचते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे हम लोगों ने अराउंड 13-14 फॉर्मूलेज किए थे. उसके बाद में हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स के फॉर्मूलेज किए थे. देन वी डिड द फॉर्मूलेज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, व्हिच वुड बी द लास्ट फॉर्मूला. देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ये क्लास 11th में होना चाहिए था. यदि आपने 11th में कर लिया है तो यू कैन वाइप ऑफ द स्क्रीन, यू डोंट नीड टू वरी. बट यदि आपने नहीं किया है, इट वुड बी बेटर कि आप इसको कर लो. So what is the formula? Sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta by 2. Cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta by 2. Tan square theta can be written as 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. Sin 2 theta can be written as very 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 important formula, 2 sin theta cos theta. It is also, sin 2 theta is also equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta.
which is also equals to 2 cos square theta minus 1. कैसे आया? वेरी सिंपल गाइस, कॉमन सेंस. आप यहाँ ब्रैकेट लगाना और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्लास 10th की आइडेंटिटी को पुट कर देना, विच इज, याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो यू आर गोइंग टू पुट यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा minus 1 minus cos square theta, which is going to be 2 cos square theta minus 1. Cos 2 theta is also equals to 1 minus 2 sin square theta. वापस से वही सेम काम, cos square theta की जगह पर 1 minus sin square theta सब्स्टिट्यूट कर देना from class 10th. वापस से this should be equals to 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta. Sin 3 theta should be equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. And cos 3 theta equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So that would be all. Now, let's directly jump on to the questions. First of all, we'll try and complete around 5 questions today and then the sheet follows, guys. Guys, very, very important exercise. यदि ये आ गया तो integration खत्म हो जाएगा. And यदि कहीं integration खत्म हो गया तो guys, what else to say? So let's rub this off. आज का जो topic होगा that is going to be substitution and HOD. तो मैं पहले जानबूझ करके पहले मैं HOD से स्टार्ट करता हूँ. What is the full form of HOD? H stands for higher, O stands for order, and D stands for derivatives. So what is HOD stands for? HOD stands for higher order derivatives. CBSE and state दोनों के अंदर एक क्वेश्चन कंपल्सरी फ्रॉम HOD आपके ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा. It can be in the form of differential equation, it can be in the form of your differentiation, it can be in any form, but ये question आता ही आता है. So let's see what actually do you mean by the word HOD. Suppose कर लो किसी ने आपको बोला d by dx, या और सिंपल किसी ने आपको एक फंक्शन दिया है fx is equals to sin x minus cos x. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना. तो मान लो किसी ने आपको बोला f डैश x निकालो. व्हाट डू यू मीन बाय f डैश x? एक बार डैश है, वन टाइम डिफरेंशिएशन, which should be equals to d by dx of entire bracket sin x minus cos x. अगेन गाइस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा cos x. cos x का डिफरेंशिएशन विल बी minus sin x. Minus into minus will be plus sin x, and that's all guys. ये आ गया आपका डेरिवेशन the first time, which will be f dash x. But किसी ने बोला नहीं नहीं, I need to find out f double dash x. तो क्या करोगे? वेरी सिंपल, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करने के लिए d by dx of f dash x, और it is equals to d by dx of f dash x, मतलब जो भी आंसर आया था उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन. सो इट विल बी cos x प्लस sin x, और f डबल डैश x should be equals to, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, d by dx of cos x is minus sin x and plus sin x का डिफरेंशिएशन is cos x. सो गाइज प्लीज रिमेंबर नाउ, यहाँ पर बात आती है सिंप्लीफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन की. ये खाना टेक्निकली अभी ढाबे का खाना है. इट टेस्ट गुड बट अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इसको इससे बेटर है आप हमेशा लिखोगे cos x minus sin x, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर. ओके, बट कभी कभी वो आपको कुछ ऐसा वाला पार्ट भी बोल सकते हैं. दे कैन आस्क यू समथिंग लाइक दिस, व्हाट इज x square, what is x square f double dash x minus x f dash x. उन्होंने आपको सेम क्वेश्चन दे दिया, what is x square f double dash x minus x f dash x. सर ये क्या है? कुछ नहीं करना, x square के आगे क्या लगा है? f dash x, तो यहां पर लगा दो. x square के आगे what is f double dash x? cos x minus sin x. cos x, या मान लो आपको यही दिया है x into f double dash x minus x into f dash x. So let's apply x into f double dash x is cos x minus sin x minus x into f dash x. So what is f dash x? This is the f dash x, which is cos x plus
sin x। अब क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बजाय आप x x दोनों को कॉमन निकाल सकते हो। सो टेक आउट x कॉमन, आप चाहो तो ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो। सो ये आंसर आ जाएगा cos x माइनस साइन x माइनस, क्योंकि x आपने बाहर निकाल दिया तो माइनस cos x माइनस साइन x। करेक्ट, साइन क्योंकि अंदर के चेंज हो जाएंगे, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पर आंसर आएगा माइनस 2 sin x और माइनस 2x sin x। This could be the answer. Now they can also ask you the question like this: prove that x f double dash x minus x f dash x is equals to minus 2x sin x. Yeah, they can also ask you like this: prove that x f double dash x minus x f dash x should be equals to x sin x by minus 2. Very simple. So करना कुछ नहीं है, बस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जितने डैश लगे हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो इक्वेशन के अंदर, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. So they'll ask you a question something like this. मान लो उन्होंने आपको दे दिया fx is equals to x dot log x, और उन लोगों ने आपको कुछ भी से क्वेश्चन के अंदर बोला वो बाद में देखते हैं, बिकॉज मैंने अपने मन से बनाया हुआ है क्वेश्चन. सबसे सपोज करो आपको यहां पर निकालना है f ट्रिपल डैश x. ओके, सो इट शुड बी इक्वल्स टू, क्या करोगे पहले चेक करोगे क्या यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. ऑफ कोर्स यस, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट, यहाँ लिख दो सेकंड. फर्स्ट फंक्शन बट f ट्रिपल के पहले f डैश निकालना पड़ेगा, फिर f डबल, फिर f ट्रिपल. फर्स्ट फंक्शन इनटू d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ x. Correct? So it is going to be x, d by dx of log x is 1 upon x plus log x. So answer is going to be 1 plus log x. ये हो गया. Then they will come, no, this is not the way. आपको f ट्रिपल निकालना था अपने को, तो f डबल डैश x कैसे निकालोगे? सिंपल, f डबल डैश x कब करोगे? d by dx of f dash x. f dash x. What is d by dx of f dash x? It should be equals to d by dx of bracket 1 plus log x. What is the final answer? So f double dash x should be equals to d by dx of 1 will be 0 and d by dx of log x is 1 by x. Then comes f triple dash x. थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सो d by dx of f double dash x, or it should be equals to d by dx of, what is f double dash x? That is 1 upon x. So what is the final answer? It should be minus 1 upon x square. And that's all guys, it is done. So this is your f triple dash x. Now they can also ask you the question, so please उसके लिए symbols ध्यान रखना. f dash x को ही हम लोग dy by dx भी बोलते हैं यदि इक्वेशन y के टर्म्स में दी होती है, मतलब y is equals to something, so dy by dx को भी f dash x बोलते हैं, और इसी को ही आप ये भी बोलते हो d by dx. ओके, यदि कभी किसी ने बोला f डबल डैश x, तो इसी को ही हम लोग d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इट शुड बी ऑल्सो डी स्क्वायर, जो भी कुछ वेरिएबल होगा, अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसी को कई बुक्स के अंदर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स भी बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? डेल्टा का मतलब चेंज इन, चेंज इन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल. देन कम्स एफ ट्रिपल डैश एक्स, को कैसे लिख सकते हो? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, or it should be also equals to d cube by dx cube, or it should also be equals to delta cube by delta x cube, or it should be equals to delta
बाय डेल्टा स्क्वायर एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स स्क्वायर, आई मीन जो भी गाइस डिपेंडिंग ऑन यू. So these are only the samples, ताकि just in the case बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी आ जाए, so you shouldn't get कि सर अब ये तो क्या चक्कर है. So that is this. So very very simple guys. So आज के जो मैं शीट दूंगा उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस प्रूव करने वाले होंगे. घबराना मत. पहला काम जो उन्होंने बोला है पहले वो निकालो, उसकी वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डू व्हाटएवर यू फील लाइक, मेक श्योर दैट यू प्रूव व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू प्रूव. Now, let's first of all directly come on to the part of substitution method and then we'll once again move back to HOD. So let's rub this. इसी को बोलते हैं higher order derivatives because ये higher order है. मतलब ये first order, second order, third order है. मान लो differentiation आपको एक बार करना है तो वो कितने order का होगा? First order. किसी ने आपको बोला differentiation 3 बार करना है, third order. 4 बार करना है, fourth order. That's all. Now यहां से 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसे कर सकते हो. किसी ने आपको बोल दिया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0. अब बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, दो अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन टच भी नहीं किया है. किसी ने आपसे बोला फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन. ऑर्डर का मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ dy by dx इज ओवर हियर. हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? dy by dx कितनी बार करना है, मतलब f डबल डैश ट्रिपल डैश कितनी बार करना है. तो आप देखो यहाँ पर आपको 2 बार करना है d स्क्वायर y, मतलब ये f डबल डैश x है. यहाँ पर एक ही बार करना है f डैश x, लेकिन उसका क्यूब है. सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन. जो भी आपका हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर. तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2. इसके ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो भी पावर लगी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? सर इसके ऊपर में तो लेकिन कुछ है ही नहीं. आंसर इज जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान. भग को हटाओ 1, सो इट इज 1. मान लो किसी ने एक और क्वेश्चन दे दिया डी क्यूब वाई by dx cube whole to the power 4 minus d square y by dx square whole to the power 6 plus dy by dx whole to the power 9 minus 3x square plus 4 equals to 0. That is, suppose this kind of differential equation is this, though ये legit नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, but मान लेते हैं 1 मिनट के लिए सही है. अब किसी ने आपको बोला इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, तो अब ऑर्डर क्या बोलोगे? और 4 ऑप्शंस दिए होंगे. इट कैन बी एन एमसीक्यू इन जेडबलई. व्हाट कैन बी द ऑर्डर? या आपको ये भी बोल सकते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन. सम का मतलब एडिशन करना है, बट इन सब क्वेश्चंस के पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है. सो व्हाट इज ऑर्डर? देखो हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? f ट्रिपल डैश x, f डबल डैश x, f सिंगल डैश. 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3. अब पावर्स पे मत जाना. 3. व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री? तो 9 मत लिख देना, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री किसकी होती है? जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है. तो हाईएस्ट ऑर्डर है 3 एंड हाईएस्ट डिग्री है 4. सो आंसर वुड बी 3, 4. उन्होंने बोला नहीं सम निकालना है. 3 + 4 is 7 is the answer. Find the product of 3 × 4 is 12. Find the subtraction of answer is -1. That's all. That's so simple. Got this? Okay. Now let's come back to the word substitution method. By the way, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 mark question for both the boards. Okay. So let's talk about substitution and HOD. So before I write it, I've got this addition right now, which of course cannot be seen in the screen. So I am just copying a question, so that आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों आया. So let's write one of the question, that is sine inverse, then comes the question is 2x under root of 1 minus x square. So this is a question and they are asking you to find d by dx. आपको अभी तक क्या मालूम है? चेन रूल ही सिखाया है अभी तक. तो आप क्या करोगे? चेन रूल 1/√1 minus x square डॉट फिर d by dx ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब d by dx ऑफ इसका, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
दैट्स गोइंग टू बिट टीडियस हुआ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। उससे बेटर जब भी कभी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले चेक करो क्या और कुछ लगा सकते हो क्या आकर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप लोगों ने स्नैपशॉट लिया था, यदि वो स्क्रीनशॉट मैंने आपको इसीलिए बोला था कि ले लेना, ताकि साइड वाले विंडो में या मल्टीपल विंडो वाला फोन हो तो आप या फॉर्मूलेज लिख लेना, तो शीट बगल में रखना। क्या ये फॉर्मूला किसी चीज से या किसी फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है? सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब केवल सोचो, साइन इनवर्स तो बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रहा। 2 यदि x के जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट करा साइन थीटा, 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लास 10th के हिसाब से हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है कॉस थीटा। तो आंसर क्या आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड दैट्स ऑल शुड हैव बीन द आंसर। इट्स दैट सिंपल। सो डिड यू अंडरस्टैंड द पार्ट? सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको बस केवल जो भी कोई क्वेश्चन है, आपको उससे फॉर्मूलेज मैच करने हैं एंड सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स सी आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। सो आपने यहां पर लिखा लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आपने मान लिया कि जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट कर रहे हो? साइन थीटा। तो जहां जहां पर x है यहीं पर ही लिख देना। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। यदि ये साइन यहां पर आएगा ना, अभी आप इसको ऐसे मत सोचना कि साइन यहां पर आता है। दीज आर नोन एज इनवर्स फंक्शंस। ये जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब आपको बता दूंगा। एज ऑफ नाउ केवल इतना ध्यान रखना, व्हेन साइन विल कम ओवर हियर, इट डज नॉट कम ओवर हियर। It is only meant for the part of understanding, as in for the part of learning. It's a kind of a trick. So sin inverse x should be equals to theta. Okay. अब क्या करोगे? जहां जहां x दिखाई देगा वहां वहां पे sin theta पुट कर दो. So let's put this. So ये हो जाएगा sin inverse d by dx of sin inverse 2 sin theta dot cos theta. साइन इनवर्स भूल से भी अभी डिफरेंशिएशन मत कर देना। ये डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पर थीटा है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, आंसर 0 आएगा, टीचर गलत दे देगी। सो इट शुड बी इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ, डू नॉट डू दिस। अभी तक हम डिफरेंशिएशन को कुछ भी नहीं किया है, अभी तो केवल अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स, तो यहाँ पर आपने लगाया साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का। तो राइट sin 2 थीटा। सो व्हाट डू यू थिंक इट विल बी? d by dx of sin 2 थीटा। अब यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन है, साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल। लेकिन कृपया करके प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट कट दिस। साइन इनवर्स और साइन कट मत कर देना। साइन इनवर्स और साइन कट क्यों नहीं करोगे? बिकॉज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये ऐसे नहीं कटते हैं। बट ये आप प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है इसका आंसर केवल कितना आएगा? 2 थीटा आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। तो केवल ये डिग्री बचती है, बाकी सारा गायब। Now d by dx of 2 theta, अभी भी डिफरेंशिएशन मत करना। क्या करोगे? It should be equals to d by dx of bracket 2, what are you going to put in the place of theta? थीटा की जगह पर डाल देना sin inverse x। तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin inverse x। So what do you think is will be the answer? अब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर कौन है? x, यहाँ पर भी है x। So it is going to be 2 upon under root of 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन होता है, आई मीन द फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा साइन इनवर्स एक्स का, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। काइंड ऑफ सेम बट एग्जैक्टली नॉट काइंड ऑफ सेम। लेट्स सी cos इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स 2x
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप बोलोगे सर क्या करवा रहे हो सर, सेम ही तो है। जस्ट चेक, लेट्स चेक। वापस से वही काम, लेट x इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम इज cos टू थीटा के फॉर्मूले में ऐसा कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है। चेक कर लो, नहीं आता। यदि नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, आपको तो मालूम है 2 sin थीटा cos थीटा आएगा। सो लेट्स पुट इट, लेट x इज इक्वल्स टू sin थीटा। केवल देखते जाओ। अब आपको लगेगा सर लेकिन एग्जाम में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें sin थीटा पुट करना है कि cos थीटा? नहीं मालूम पड़ेगा। आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहते हो, जब आप 5-6 क्वेश्चंस करोगे, यू विल इमीडिएटली कम टू नो कि व्हिच फॉर्मूला नीड्स टू बी अप्लाइड। नाउ सी दिस, लेट x इक्वल्स टू sin थीटा, तो अभी क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ब्रैकेट यहाँ 2 sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहीं पर लिख दिया, और साइन इनवर्स x should be equals to theta। आगे देखते हैं, d by dx of cos inverse 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta कैसे आया? Because 1 minus sin square theta should be equals to cos square theta, under root of that is cos theta। Next, d by dx of, यहां पर आ चुका है आपके पास में cos inverse, इधर पे आ चुका है क्या, दैट इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। क्या हुआ, क्वेश्चन तो सेम था ना? नहीं। नाउ द प्रॉब्लम इज, यहां पर है cos इनवर्स, यहां पर है साइन। cos इनवर्स को साइन से डायरेक्टली तो कट नहीं कर सकता, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लीज रिमेंबर, साइन को cos में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, याद है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। सो लेट्स राइट d बाई डी एक्स ऑफ क्लास 11 से cos इनवर्स, जहां जहां पर साइन दिखाई दे रहा है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, cos 90 माइनस 2 थीटा। सर अब ये क्या किया, कुछ समझ में ही नहीं आया। लेट्स सी अगेन, आप खुद सोचो, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, cos 90 minus theta will always be equal to what? That is sin theta. तो cos 90 minus theta should be equals to what? Sin 2 theta. तो इसका मतलब है मैंने सेम ही लिखा है। जब भी कभी आपको डाउट आए, ध्यान रखना है, इसको ओपन करोगे तो यही आना चाहिए। यदि आ रहा है तो आप सही हो, यदि नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली गलत हो। अब तो मैं कट कर सकता हूँ cos इनवर्स को cos से, तो क्या बचेगा मेरे पास में, d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब d बाई डी एक्स करूंगा 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, अभी तो नहीं कर सकता। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वंस अगेन। सो लेट्स सी, लेट्स रब दिस। So now this is going to be d by dx of pi by 2 will be 0, बट अभी उसको चेंज नहीं करते, अभी उसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 2 थीटा की जगह पर क्या पुट करोगे, लास्ट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। सो लेट्स सी क्या हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 शुड बी इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली आ जाएगा 0, फिर ये आएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिया, एंड दैट्स ऑल द आंसर इज। So this is how you do the substitution method. Now let's take few more questions onto this the same part. So can I rub this? जहां पर भी आपको कोई भी समझ में ना आए, start taking snapshots, okay, or the screenshots. Let's take another question. So another question could be, okay, where's the question? Yeah, let's write cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So this is the question. Cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and of course you need to find out d by dx. सर अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। थिंक अबाउट इट, ऐसा कोई भी फॉर्मूला है क्या कॉस का या साइन का जिसमें 1 माइनस अपॉन 1 प्लस कुछ आता है?
नथिंग शीट. सो लेट्स सी दिस. तो ये क्या करोगे, cos इनवर्स, यहां पर मैंने क्या पुट करूंगा, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा और theta is equals to tan inverse x. So it is going to be something like this, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So what do you think the final answer should be? So यहाँ पर आएगा d by dx of, यहाँ पर भी आना चाहिए था, of cos inverse, and this is the formula of what? That is sin to theta होता है या cos to theta होता है? So let's write cos to theta. Correct? So ये हो जाएगा आपके पास में 2 theta d by dx. भूल से भी डिफरेंशिएशन मत करना, और d by dx of 2 बाहर, एंड थीटा की जगह पर क्या लिख दूंगा, tan inverse x. So what is the answer? 2 upon 1 plus x square. And that's all is the answer, guys. So the question are very, very simple. You only need to understand at which part you are going to, or you at which particular step you have to put, what particular formula. So now we'll be stopping this lecture right over here. I'll give you a sheet today. उस शीट पे सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े से अप लेवल के होंगे. ट्राई टू डू इट. जितना आता है अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल सॉल्व दैट शीट वंस अगेन. ओके, सो गाइस एंजॉय, टेक केयर, एंड टुमारो वी विल बी स्टडिंग ऑफ कोर्स मैथ्स. ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा. एंड कल हमें हर हालत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशंस करने हैं फॉर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. कल हम इक्वेटोरियल करेंगे, एक्सियल करेंगे, एट एनी पॉइंट वाला पार्ट करेंगे, 3 हो जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट आई थिंक एट सर्कुलर रिंग वाला करेंगे, 4 हो जाएंगे डेरिवेशंस. एंड वी आर गोइंग टू डू लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने आपको बता दिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दिया था. सो वी आर गोइंग टू सी. ओके, थैंक यू गाइस सो मच, बाय एंड एंजॉय.